Hello students, welcome to Ashwamekh Vidyalaya. Myself Surekha Patel and today we are going to start our new lesson Mughal Empire Establishment and Extension. मुगल एम्पायर का जो साम्राज्य है उसका एस्टैब्लिशमेंट यानी उनकी स्थापना कब हुई थी एंड एक्सटेंशन. स्टूडेंट्स, वी हैव टू बी विजिटेड सम प्लेसेस ऑफ इंडिया and we see that different historical places are there. That time the tourist the guide should be give the guidance about that ki this place is executed by invented by the मुगल एम्पायर. तो ये जो मुगल एम्पायर है उसके जो अलग अलग पीक हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्लैंस ऑफ आर्किटेक्चर वर्क should be done at the Mughal Empire. So we have to be see the different type of work we have to be see here. जो ताजमहल है, रेड फोर्ट है, फिर फतेहपुर सिकरी, तो ये सारे जो ग्लेंस है हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं. इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 15th of August. Pratik show the national flag being unfurled at the Red Fort on his TV at home. He even showed different pictures of the Red Fort. The next day, Pratik asked his class teacher all about the Red Fort. His teacher downloaded picture of the Red Fort as well as the picture of other architectural monuments from the internet and showed them to the students. इंडिपेंडेंस डे के दिन 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के दिन रेड फोर्ट के ऊपर जो तिरंगा अनफ्लर्ड हुआ तो प्रतीक ने वो देखा. नेक्स्ट डे प्रतीक गोज टू स्कूल and asked to her teacher about the history of Red Fort. His teacher downloaded some pictures of Red Fort and other monuments which have to be constructed during of the Mughal period and show the students. While showing them these pictures, the teacher told them that those monuments were constructed during the Mughal period. She decided to tell them all about the Mughal rule. Or afterwards the teacher tell the whole time narrated by the Mughal rule. Delhi was under Ibrahim Lodi's rule during that time and Babur ruled in Kabul. Ibrahim Lodi and Babur both have to be ruling on to Delhi and Kabul, Afghanistan. Babur was the ruler of a Mughal dynasty. Babur was the ruler of the Mughal dynasty. Mughal dynasty के रूलर थे. He attacked Delhi in 1526 century. Ibrahim Lodi was defeated by Babur's well-equipped army in the battle of Panipat. Remember that Panipat के battle में Ibrahim Lodi has been defeated by the Babur. This brought an end of the Sultanate age and the establishment of the Mughal rule. और जिसके वजह से सुल्तान एज का जो टाइम था वो उसका एंड आया और मुगल रूल शुड बी एस्टैब्लिश्ड. इन द बिगिनिंग द मुगल्स रूल नियर दिल्ली. शुरू में दिल्ली के नज़दीक में मुगल रूल था. बाबर वॉन मैनी बैटल्स एंड हिज डिसेंडेंट ग्रेजुअली एक्सटेंड द इंपीरियर. बाबर ने बहुत सारे बैटल जो है विक्ट्री पाए एंड आफ्टर ही हैज़ बीन एक्सटेंडेड द एम्पायर. एक्सटेंड यानी बढ़ाया. Let us learn about incident that occurred during the Mughal age and know more about the administrations and social life of that time. Main events of the Mughal dynasty. Babur, that should be a 1526 to 1530. In 1527 century, he fought battle with the brave Rana Sanga at Kanwa, in which Babur defeated him as his army was equipped with a कैनॉन. कैनॉन यानी कि जो बॉम्ब से रिलेटेड वो जो टैंक होती है आर्मी टैंक उसे कैनॉन कहा जाता है. तो राणा संगा को उन्होंने डिफेट किया. इन 1530 बाबर फेल इल एंड डेड. 1530 में बाबर जो है बीमार हुए और मर गए. ही फाउट मैनी बैटल्स to lay a strong foundation of Mughal Empire and gain control over areas near Delhi and Agra.
दिल्ली और आगरा के नज़दीक के जो एरिया थे उसके ऊपर उन्होंने जो है पावर कंट्रोल किया. ही इमर्ज विक्टोरियस इन मोस्ट ऑफ द बैटल. नाउ हुमायूं आफ्टर द बाबर. हुमायूं असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली आफ्टर बाबर के बाद हुमायूं ने उसका राजवंश जो है संभाला. अकॉर्डिंग टू हिज फादर विल द किंगडम वॉज डिवाइडेड एंड ईच ऑफ हिज ब्रदर्स इनहेरिटेड वन प्रोविंस. फादर ने जो भी विलिंग यानी कि विक्ट्री हासिल की थी उसको डिवाइड किया गया उनके ब्रदर के बीच में और हर एक को एक वन प्रोविंस प्रोवाइड किया. ही रिटेन दिल्ली. उनके हाथ में दिल्ली आया. हुमायूं हैड टू स्ट्रगल अ लॉट अगेंस्ट हिज ब्रदर कामरान एंड द अफगान. हुमायूं ने अपने ब्रदर्स के सामने भी बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा. हुमायूं वॉज डिफीटेड ट्वाइस बाय शेर शाह एंड ही हैड टू एस्केप फॉर 15 years in order to save his life. During that time, Akbar was born in the palace of King Amarkot. हुमायूं जो है शेर शाह को 2 बार हराया और for escape for years 15 years in order to save his life. उसकी लाइफ को सेव करने के लिए जो है एस्केप किया. ड्यूरिंग दैट टाइम वो समय के दौरान अकबर जो है हुमायूं का सन अकबर अमरकोट के पैलेस में उसका बॉर्न हुआ. हुमायूं रिगेन दिल्ली फ्रॉम द सक्सेसर ऑफ शेर शाह. हुमायूं ने अपने सक्सेसर जो है शेर शाह को दिल्ली जो है रिगेन किया. हुमायूं के बाद शेर शाह सूरी वॉज एन अफगान लीडर हु हैड प्रोग्रेस ऑन हिज ओन. अपने खुद से प्रोग्रेस किया. ही डिफीटेड हुमायूं ट्वाइस एंड देयरफॉर एस्टैब्लिश्ड द सूर डायनेस्टी इन दिल्ली. अकबर को 2 बार हराने की वजह से उसने दिल्ली में अपना डायनेस्टी वंश जो है रूलिंग किया. After gaining control over Delhi, he won many other important battles. He then extended his empire from Kabul to Bengal and Malwa. He is known as the reformer in history. After Sher Shah, the Mughal dynasty was re-established in Delhi. शेर शाह के बाद वापस से शेर शाह जो है वो उनका डेथ हो गया कि कुछ भी हिस्ट्री खत्म हुआ तो उसके बाद वापस मुगल डायनास्टी जो है वो एस्टैब्लिश हुई. किसके द्वारा? अकबर के द्वारा. इन द ईयर 1556 to 1605 अकबर वॉज जस्ट 13 years old when his father हुमायूं पास अवे. जब अकबर 13 years के थे तब उसके फादर चले गए. अकबर वॉज अ वेरी यंग एंड सो Bayram Khan, a faithful minister of Humayun, brought him up as a guardian and took care of the administration of Akbar's behalf. हुमायूं के चले जाने के बाद अकबर जो बड़े एकदम यंग थे तो बैराम खान जो उसके फेथफुल मिनिस्टर थे हुमायूं के, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला और अकबर को भी गाइडेंस दिया. हेमू, द लीडर ऑफ सिकंदर सूर, established his rule over Delhi when Akbar was in Punjab. हेमू कौन था? सिकंदर सूर का लीडर जिन्होंने दिल्ली के अंदर अपना रूलिंग पावर एस्टैब्लिश किया था जब अकबर पंजाब में थे. विद द गाइडेंस ऑफ बैराम खान अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत. बैराम खान ने अकबर को गाइडेंस दिया और अकबर ने जो है हेमू को डिफीट किया. सिंस बैराम खान बिकम मोर इंडिपेंडेंट अकबर सेज अवे ऑल हिज पावर एंड सेंट हिम फ्रॉम हज. जब बैराम खान ने ज़्यादा इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र होना चाहा तो अकबर ने सारा उसका जो पावर था, जो कंट्रोल था, वो कैच कर लिया और उसे हज पे भेज दिया. ही वॉज किल्ड ऑन वे टू हज. और जब वो हज में जा रहे थे तब उनकी यात्रा में उनको मार दिया गया. अकबर एनेक्टेड चित्तौर एंड रणथंभौर इन द बैटल ऑफ अगेंस्ट राणा प्रताप. अकबर ने चित्तौर और रणथंभौर जो है राणा प्रताप को हरा के ये एनेक्स कर लिया, खाली करवाया. फ्रीक्वेंट बैटल वेर फॉट बिटवीन देम. और दोनों के बीच में फ्रीक्वेंटली बैटल होते रहे. अकबर्स एम्पायर एक्सटेंड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1585 to 1650. He annexed Kandahar, Kashmir and Kabul and established his rule over Khandes, अहमदनगर इन साउथ. उन्होंने खानदार, कश्मीर और काबुल ये भी एनेक्ट किए और अपना जो रूल था वो
खानदेश अहमदनगर साउथ तक फैलाया। देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिसऑर्डर ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ अकबर्स रूल एज प्रिंस सलीम revolted. Later on, Salim adopted the name Jahangir and ascended the throne. सलीम का नाम जो है जहांगीर रखा गया और उन्हें जो राजगादी थी वो सौंपी गई। We have already gathered a lot of information about the different rulers of the Mughal dynasty like Babur, Humayun, Akbar and Shah Suri of the Shah dynasty. Now on the basis of this, let us know about the administration, society, art and architecture. हम लोगों ने यहाँ पे जो किंग थे मुगल एम्पायर में उसके बारे में पढ़ा ना, उस टाइम के जो रिलेशन है, ट्रेडिशनल है, ये सारे जो चीज़ है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, एवरीथिंग। रिलेशन ऑफ मुगल्स विथ अदर रूलर्स, मुगल्स के जो रिलेशन थे दूसरे रूलर के साथ कैसे थे। व्हेन हुमायून हैड एस्केप इवन द हिंदू रूलर्स गेव हिम स्लेटर, हिंदू रूलर्स ने भी उन्हें स्लेटर दिया था। देयरफॉर देयर कल्चर वॉज रिफ्लेक्टेड इन द अपब्रिंगिंग ऑफ अकबर, अकबर से ज़्यादा अपब्रिंगिंग रहे थे। ही टुक द हेल्प ऑफ हिंदू रूलर्स व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन। ही न्यू दैट ही वुड नॉट बी एबल टू रूल इन इंडिया इफ ही इग्नोर द राजपूत रूलर। हुमायूं को पता था कि अगर वो राजपूत रूलर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रखेंगे तो वो जो है इंडिया में रूलिंग नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर ही मेंटेन अ गुड रिलेशन विद द राजपूत रूलर एंड वॉन देयर कॉन्फिडेंस। द रूलर हु डिड नॉट एक्सेप्ट हिज अथॉरिटी हैड टू फेस हिम, जो उनकी अथॉरिटी नहीं संभालते थे तो उसको फेस करना पड़ता था। द रूलर ऑफ सिसोदिया राजपूत डिड नॉट एक्सेप्ट हिज रूल एंड हैड मैनी कॉन्फर्नेशंस विथ हिम, जिसके वजह से दोनों के बीच में बहुत ही कॉन्फर्मेशंस हुए, डिस्प्यूट्स हुए। ट्रेडिशंस ऑफ इनहेरिटेंस, द किंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द सक्सेसर ऑफ द किंगडम एंड इट वुड यूजुअली बी द ओल्डेस्ट सन। ड्यूरिंग द मुगल रूल ऑल द सन्स वुड गेट एन इक्वल शेयर ऑफ एम्पायर, हर एक को इक्वल शेयर्स मिला। द काइंड ऑफ हेरेकी वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग अ ह्यूमायूस रीजन। हेरेकी जो वर्षागत होती है, यानी कि कोई एक सिंगल रूलर होता है। आफ्टर दैट रूलर्स कंस्पायर्ड अगेंस्ट ईच अदर फॉर द थ्रोन, और उसके बाद जो रूलर्स होते हैं वो थ्रोन संभाल के लिए कंस्पायर्ड हुए। ब्रदर वुड क्वारल विथ वन अनदर फॉर द थ्रोन एंड हु एवर वन असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। जो ब्रदर्स थे वो थ्रोन संभालने के लिए लड़ते थे और जिसके वजह से जो वॉन होता था वो दिल्ली का थ्रोन संभाला था। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखेंगे तो द सूबेदारी सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। Akbar divided his kingdom into 15 sections. Each section was known as a Suba or province. The subsection of Suba was called a government. Suba का जो सबसेक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट। एंड द सबसेक्शन ऑफ गवर्नमेंट was known as a pragna. The head of each pragna was called a amir, who would collect the revenue. प्रगना का जो हेड है दैट इज नोन एज अ आमिर एंड हु हैज वर्क एज कलेक्ट द रेवेन्यू। देयर वेर ग्राम पंचायत इन विलेज एंड द हेड वॉज नोन एज अ पटेल, चौधरी, मुकादम एक्सेट्रा। दस ड्यूरिंग दैट टाइम वेरियस एग्जीक्यूटिव वेर अपॉइंटेड। तो इस तरह मुगल पीरियड के समय के दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो था वो बहुत लोगों के बीच में एस्टैब्लिश्ड किया गया था। ड्यूरिंग अकबर्स रीजन पिलग्रिमेज टैक्स वॉज नॉट लिविड। पिलग्रिमेज टैक्स जो थे नहीं थे, यानी कि पिलग्रिमेज यानी कि जो धर्म स्थान है वहाँ पे टैक्स नहीं लिए जाते थे। दस देयर वुड बी अ ह्यूज क्राउड इन द पिलग्रिमेज सेंटर। अकबर वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट टॉलरेंट एंड benevolent किंग अमॉन्ग ऑल द मुगल रूलर्स। दूसरे रूलर्स के से अकबर जो है वो टॉलरेंट और मोस्ट benevolent किंग माने गए। ही रेगुलरली ऑर्गेनाइज रिलीजियस मीट इन द प्रेयर हॉल एट सिकरी। सिकरी में प्रेयर हॉल में वो धर्म परिषद भी ऑर्गेनाइज करते थे। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड अ डिस्कशन हॉल एज अ रिलीजियस मैटर वेर डिस्कस दियर।
Representative from all religions attend the meeting. The royal court was adorned by scholar. और ये जो कोर्ट था वो जो स्कॉलर्स थे उनके द्वारा एडोन किए जाते थे. द 9 gems of Akbar's court were Todarmal, the revenue minister; Man Singh, the leader of Dak's army; Abul Fazl, the historian and writer of Ain-e Akbari and Akbarnama; Tansen, the famous singer; Mullah Dubiaza, the clever and jolly courtier; Mahesh Das Birbal, the quick-wit courtier and trickers; Hammam, the famous Vidya physician; Faizi, the renowned poet; and Abdul Rahim, the Hindi verses writer. तो ये 9 जो थे वो अकबर के कोर्ट को एडॉन करते थे. यहाँ पे सम वर्ड्स हम लोगों को दिए हैं. दीवान यानी हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट. बख्शी विजिलेंस ऑफिसर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट. सादरा विजिलेंस ऑफिसर हु लुक्स आफ्टर रिलीजियस डोनेशन एंड चैरिटेबल फूड एक्सेट्रा. मतलब चैरिटेबल धर्मदाय का जो काम था वो देखने वाला पर्सन कौन था? शादरा. काजी यानी जज. फौजदार हेड ऑफ द गवर्नमेंट. कोटवाल द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु लुक्स आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर. जैसे हमारा अभी पुलिस है उसी तरह उस समय कौन था? कोटवाल जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था. मेरे बहार दैट इज कंट्रोल एंड टैक्स कलेक्टर ऑफ पोर्ट ऑक्ट्रॉय बोट एक्सेट्रा. यानी कि जो कोस्टल रीजन के अंदर जो टैक्स लेने का काम करता था. एंड सेनापति द लीडर ऑफ द रॉयल आर्मी. जैसे कि हम लोग मिलिट्री मैन दैट इज सेनापति. तो इस तरह जो रॉयल कोर्ट के मेंबर्स थे उनके नेम्स दी थे, उनको निक नेम थे. और जो रॉयल कोर्ट में जो है हाजिर रहते थे. हियर वी हैव टू बी सी द पिक्चर ऑफ रॉयल कोर्ट ऑफ अकबर. Even we have to be also see this type of add-on court as in different type of serials and social medias that is give the information about the royal court of Akbar. Thank you.